Dear students, today we are going to start chapter 3, Indefinite Integration, exercise 3.1. Question number 3, evaluate means evaluate the following integrals here. First one, I equal to integral of x upon x plus 2 into dx. This is your question. So attention on the denominator. Here denominator is x plus 2. So we should adjust x plus 2 in the numerator also. So for adjusting here x is already there. For adjusting x plus 2 means plus 2 in the numerator, we should add and subtract 2 in the numerator. So this will be equal to integral of x plus 2 minus 2 upon x plus 2 into dx. After that, what we have to do here, this is equal to integral of x plus 2 upon x plus 2 means separate it. X plus 2 upon x plus 2 minus 2 upon x plus 2. So 2 upon x plus 2 here and dx. So we separate the numerator means x plus 2 as one term and minus 2 as another term. So x plus 2 with the same denominator means x plus 2 upon x plus 2 minus 2 upon x plus 2, 2 upon x plus 2, that is same denominator, into dx. Now we see that x plus 2 going by x plus 2 and minus 2 upon x plus 2 as it is. So this will be equal to integral of 1 minus 2 upon x plus 2 into dx. Now we should integrate the terms in the integral. So what is the term in the integral? We see that integral of 1 dx. First we take first term, integral of 1 dx. So integral of 1 dx, you know very well, it is a formula x. Integral of 1 dx or only dx is x. Now second term minus 2 upon x plus 2. So minus 2 upon 2, 2 upon x plus 2. So if we integrate it, so minus 2 as it is, and integral of 1 upon x plus 2 is of the form integral of 1 upon x dx. And we know that integral of 1 upon x dx is log of mod of x plus c, or you can say only log of x plus c. So integral of 2 upon x plus 2 is 2 into log of mod of x plus 2 plus c. Here modulus for the negative terms means this will not be negative because log of negative term will not be possible. Log of negative term does not exist. Okay. So see once again this question, let I equal to integral of x upon x plus 2 into dx. So it is equal to integral of x plus 2 minus 2 upon x plus 2 into dx. It is equal to integral x plus 2 upon x plus 2 minus 2 upon x plus 2 into dx, means separating the terms. We know that x plus 2 upon x plus 2 is 1 and minus 2 upon x plus 2 as it is into dx. Now integrating each term separately, so integral of 1 dx is x and integral of 2 upon x plus 2, 2 into log of x plus 2 plus c, or 2 into log of mod of x plus 2 plus c. So this question is very easy question, only simple adjustment here, plus 2 and minus 2, adjusting plus 2 and minus 2 in the numerator, and only one log formula here, main 2 log of mod of x plus 2 plus c, and you know integral of 1 dx is x. Okay, तो ये क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. In second question, let I equal to integral of 4x plus 3 upon 2x plus 1 into dx. Here I for integration, I equal to this, I indicates integration. So I equal to integral of 4x plus 3 upon 2x plus 1 into dx.
So dear students, this question you can solve by numerator upon denominator equal to Q प्लस R अपॉन डी। जैसा कि मैंने थर्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स Q प्लस R अपॉन डी। Q फॉर कोशेंट, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइजर, N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर और डिवाइजर, यू कैन सी। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिवाइड करके कोशेंट फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट आंसर सेम। या इसको मैंने एक एडजस्टमेंट के थ्रू भी दिखाया है, जैसे अगर डिवाइड का रूल क्लिक नहीं हुआ उसमें तो इसको एडजस्ट करके भी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी द क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx। So what is the denominator here? Denominator is 2x plus 1. If we take common 2 in the numerator, so what we get? So this will be equal to integral of 2 into 2x plus 3 upon 2. Taking 2 common in the numerator upon 2x plus 1 into dx. देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो फिर से हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। देखो 2 2 जा 4x प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 2 गेट कैंसिल प्लस 3, हमें फिर से न्यूमरेटर मिल गया सेम। तो 2 कॉमन करने के बाद हमें क्या टर्म मिला, 2x प्लस 3 अपॉन 2 इंटू dx और अपॉन 2x प्लस 1। नाउ टेकिंग दिस 2 आउट ऑफ इंटीग्रल बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, so it is equal to 2 into integral 2x plus 1 प्लस हाफ। सिर्फ न्यूमरेटर को देखो अभी, 2x प्लस 1 प्लस हाफ, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट। ये 3 अपॉन 2 को हमने ब्रेक कर दिया, 3 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस हाफ। यहाँ से देख लो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2, ओके। सो 2x प्लस 3 अपॉन 2 कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 प्लस हाफ, जिसमें से 2x प्लस 1 को हमने फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लिया, ओके। तो 2x प्लस 1 अपॉन सेम डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 प्लस हाफ अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx, मीन्स ये इंटीग्रल को भी हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, करेक्ट। नाउ 2x प्लस 1 गोइंग बाय 2x प्लस 1 कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 1 प्लस हाफ अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। पहले क्वेश्चन के जैसा देखो, जैसे यहाँ पर 1 था ठीक वैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा कट होने के बाद, कैंसिल आफ्टर कैंसिलेशन 1 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज एक्स प्लस हाफ एज इट इज इंटीग्रल ऑफ log 2x प्लस 1, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज log ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2। क्योंकि देखो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, डिवाइड। तो इंटीग्रेशन में डिवाइड का रूल है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई का रूल है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस स्टेप मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इन द ब्रैकेट। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, 2 इंटू 1 बाई 2, कोई भी एक 2 कट कर दो, दिस 2 और दिस 2 एनी वन। तो चलो सपोज कर लो हमने ये 2 और ये 2 कट कर दिया, तो हाफ एज इट इज log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी। ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय डिवीजन मेथड आल्सो। मींस जैसे ये एडजस्टमेंट नहीं करना है तो हम लोग यहाँ साइड में क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद हमें कोशेंट वही आने वाला है, कोशेंट क्या आएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर दिखेगा 1 प्लस हाफ अपॉन 2x प्लस 1, सेम कोशेंट दिखेगा और रिमाइंडर भी सेम आएगा, तो उसी फॉर्म में हो जाएगा। ये डायरेक्टली एडजस्टमेंट था, या तो फिर मैं अगला क्वेश्चन भी जैसे बताने जा रहा हूँ थर्ड वन वैसा कर सकते हो। और हाँ एक और चीज़ है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है कि डियर स्टूडेंट्स बहुत ही केयरफुली आप लोगों को लेक्चर को लिसन करना है, आप उसको सुनोगे तो ही एक्सप्लेनेशन बराबर समझ में आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है और अभी बेसिक है, और बेसिक अच्छा हो गया स्ट्रांग हो गया तो आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में जितने भी फार्मूले ट्रिक्स जो भी यूज किए गए हैं वो सब मैं एक्सप्लेनेशन में ही दूंगा, ओके। वो हमने यहाँ पर राइट करके नहीं दिया है,
क्योंकि आप लोग लेक्चर को अच्छे से लेसन करो, लेसन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या फार्मूला दिया गया है और उस फार्मूले का यूज कैसे हमें करना है। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद फिर आप कंटिन्यू अपना सोल्यूशन ले लीजिए यहाँ से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज थर्ड? I equal to integral of 5x plus 2 upon 3x minus 4 into dx। अब यहाँ देखो, हम लोग when we divide, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि when we divide only in the case, note down now, when highest power of numerator is equal or greater than the highest power of the denominator. So we divide it first and find the quotient and remainder for that question। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोगों को लेक्चर बहुत ही केयरफुली लेसन करना है, उसको सुनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर को देख लिए, स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्यूशन मिल गया, ईच एंड एवरीथिंग ओवर, so you can't understand that question। I equal to 5x plus 2 upon 3x minus 4 into dx। तो सीधे सीधे देखो रूल क्या बता रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस न्यूमरेटर इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस डिनोमिनेटर इज 1। तो दोनों की पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो उस केस में हमें डिवाइड करना है व्हेन वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। सिंस n अपॉन डी मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर और डिवाइजर। So what is the numerator? 5x plus 4, sorry 5x plus 2 and divisor 3x minus 4। तो डिवाइड करते हैं, 5x अपॉन 3x बिकम्स 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 तो यहाँ पर हो गया 5x, और 5 अपॉन 3 इंटू माइनस 4 बिकम्स माइनस 20/3। नाउ चेंज द साइन, माइनस एंड हियर प्लस, दिस विल बी कैंसल्ड। 2 प्लस 20 अपॉन 3 नाउ 26 अपॉन 3। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अब हमें जो हमारा क्वेश्चन है, अब इससे कोई मतलब नहीं, हमारा इस फॉर्म में लिखना है। अब हमें क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखना है। तो देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, व्हाट इज क्वोशिएंट 5 अपॉन 3। यहाँ से देखो 5 अपॉन 3 वी राइट हियर, प्लस 26 upon 3, this is remainder here, 26 upon 3 upon divisor 3x minus 4 means this one, denominator और divisor चाहे जो भी बोलो, 3x minus 4 into dx। ये हमने डिवाइड कर लिया इसको और कंप्लीट कर दिया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हम फिर से क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सिंप्लीफाई न करके अब आगे का स्टेप हमें क्या लेना है, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस। So what we get, this is equal to 5 upon 3 as it is into integral of dx is x, क्योंकि इसके साथ ही dx जुड़ा हुआ है। तो 5 upon 3 into dx means integral, तो 5 upon 3 into x plus 26 upon 3 is constant term, we write here as it is, into 1 integral of 1 upon 3x minus 4 is log of mod of 3x minus 4 upon 3। तो उस upon 3 को 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? फिर से देखो, इंटीग्रल ऑफ 5 upon 3 dx इज 5 upon 3 into x प्लस 26 upon 3 कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1 upon 3x minus 4 इज 1/3 into log of 3x minus 4, क्योंकि रूल है जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उससे हम डिवाइड करते हैं, करेक्ट। चलो अब इसको सिंप्लीफाई की तरफ ध्यान देते हैं कि व्हाट इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देयरफॉर i इक्वल टू 5x upon 3 or 5/3 into x plus 3 into 3 9, so this will be 26 upon 9 log of mod of 3x minus 4 plus constant of integration c। यहाँ पर कोई ब्रैकेट भी लिख सकता है, both are correct, so anyone can use here bracket or modulus, both are right। Now we take question number 4। Let I equal to integral x minus 2 upon square root of x plus 5 into dx।
So this is equal to x plus 5. Now see the denominator. Denominator is square root of x plus 5. So this will be equals x plus 5 minus 2 upon root of x plus 5 into dx. So we see that in the denominator plus 5 present x plus 5. So we should adjust plus 5 in the numerator also. So for the adjustment, adding and subtracting 5 in the numerator. So this will be equal to integral x plus 5 minus 2 upon root of x plus 5. Now minus 5 minus 2 becomes minus 7. So now we separate it. So x plus 5 upon root of x plus 5. So x plus 5 upon root of x plus 5 becomes root of x plus 5. जैसे x by root x remaining, तो वन टाइम रिमेनिंग मीन्स ये फर्स्ट टर्म कर लेना है, इसको फर्स्ट टर्म, और ये दोनों मिला करके क्या हो गए -7, उसको सेकंड टर्म. तो x प्लस 5 अपॉन रूट x प्लस 5 यहाँ पर होगा, दैट विल बी रूट ऑफ x प्लस 5 ओनली, -7 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 into dx. Now using integral formula for these terms, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स, मीन्स इट इज ऑफ द टाइप इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स. तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स, 2/3 x raised to 3/2. So integral of root of x plus 5 is 2/3 into x plus 5 whole raised to 3/2. फिर से देख लो, x plus 5 whole raised to हाफ है, तो हम लोग x raised to n की फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल बोले तो x raised to n dx, इंटीग्रल ऑफ x raised to n dx का फार्मूला अप्लाई करो, एंड दैट वन इज x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So this integral of root of x plus 5, 2/3 into x plus 5 whole raised to 3/2 minus integral of 1 upon root x plus 5 is 2 root x plus 5 and 7 as it is. So 7 into 2 root x plus 5 plus constant of integration. Therefore I equal to 2/3 x plus 5 whole raised to 3/2 minus here 7 into 2, that is 14 root of x plus 5 plus c. So this is the final answer for question number 4. So therefore integral of x minus 2 upon root of x plus 5 into dx equals 2/3 into x plus 5 whole raised to 3/2 minus 14 root x plus 5 plus c, constant of integration. Now fifth one, I equals integral 2x minus 7 upon root of 4x minus 1 into dx. I equals integral 2x minus 7 upon 4x minus 1 into dx. तो अब ये क्वेश्चन को देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इसको समझिए क्या है इसमें. दिस इज 4x minus 1, root of 4x minus 1. So we should adjust 4x minus 1 in the numerator also. But how? Now see this step. Since 2x minus 7 can be written as half into 2 into 2x minus 7. So half into 2 means multiplying by 2 and dividing by 2. So this half will be same into 2 into 2x 4x minus 2 into 7 minus 14. So this is equal to half into 4x minus 14. It is equal to half into 4x minus 1 minus 13, means minus 14 can be written as minus 1 minus 13. So we should adjust this term in the numerator here. So half this one 1/2 as it is, integral of 4x minus 1 minus 13. तो देखो 4x minus 1 को हमने फर्स्ट टर्म बना दिया और minus 13 को सेकंड टर्म अपॉन रूट ऑफ 4x minus 1 into dx. Now 4x minus 1 upon root of 4x minus 1, so half into integral root of 4x minus 1 minus 13 upon root of 4x minus 1 into dx. यहाँ पर भी देखो 4x minus 1 upon root 4x minus 1 will be root of 4x minus 1 only.
like as x upon root x becomes root x. So we get this term. अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन these टर्म्स को इंटीग्रेट कर देना है. तो देखो इट इज इक्वल टू दिस वन सेम 1/2, ये 1/2 यहाँ पर सेम है. देखो 1/2 ये टर्म है. इंटीग्रल ऑफ 4x माइनस 1 dx स्क्वायर रूट. तो इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ. ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, हाफ. तो इसमें हम लोग x रेज टू n की फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो दिस विल बी 4x माइनस 1 रेज टू 1 प्लस हाफ. तो 1 प्लस हाफ बिकम्स व्हाट, 3/2 upon 1 plus half. So this will be 3/2 also. Correct? But coefficient of x is 4. So we divide by 4. ये 4 इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर देखो. और जो ये 1/2 था, ये 1/2 अपनी प्लेस पर ही है, कोई चेंजेस नहीं किया गया. ये समझ में आया. तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इंटू 4x माइनस 1 होल इज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस. अब यहाँ पर आते हैं, ये हाफ का मल्टीप्लाई 13 में भी होगा, तो 13/2 हो गया. करेक्ट. अब इसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1/√4x माइनस 1 इज 2 इंटू √4x माइनस 1. बट कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, तो डिवाइड बाई 4. क्लियर. फिर से देख लो, हाफ इंटू 13/2. इंटीग्रल ऑफ 1/√4x माइनस 1 2 √4x माइनस 1. बट कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, so डिवाइड बाई 4 मीन्स 1/4. क्लियर. अब ये सिंप्लीफाई करना है हमें. तो यहाँ पर देखो दिस 2 गोइंग बाई 2, ये कट हो जाएगा क्योंकि ये 3/2 है. तो क्या रिमेनिंग रह जाता है, 4 इंटू 3. तो दिस इज देयरफॉर i इक्वल टू 1/12. देयर 4 इंटू 3 बिकम्स 12. i इक्वल टू 1/12 इंटू 4x माइनस 1 होल इज टू 3/2 माइनस, यहाँ पर देखो 2 गोइंग बाई 2, ये कट हो गया. तो 13/4 माइनस 13/4 इंटू root of 4x minus 1 plus c. Now see once again, I equal to 1/12 4x minus 1 raised to 3/2 minus 13/4 into root of 4x minus 1 plus c, which is known as constant of integration. So question number 5 completed. Now see question number 6. Sixth one, I equal to integral sin 4x upon cos 2x into dx. sin 4x upon cos 2x into dx. तो हम लोग क्या करते हैं, देखो sin 4x, इसमें sin 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो नोट डाउन द फार्मूला. sin 2x is 2 sin theta into cos theta. sin 2x is 2 sin theta into cos theta. So sin 4x becomes 2 sin 2x into cos 2x upon cos 2x. cos 2x डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही रखना है. फिर से देख लो, sin 4x can be expressed in terms of sin and cos as 2 sin 2x into cos 2x because sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. Turbo formula. So it is equal to integral 2 sin 2x into cos 2x upon cos 2x into dx. Now cos 2x going by cos 2x. Therefore it is equal to 2 integral sin 2x into dx. These two here. Now integrate sin 2x only. So integral of sin 2x dx is what? Minus cos 2x upon 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ भी तो 2 है. तो दिस 2 एज इट इज. और नेगेटिव साइन भी है कि इंटीग्रल ऑफ sin 2x इज माइनस cos 2x upon 2. So this is equal to minus 2 into cos 2x upon 2 plus c. So this 2 going by this 2. Therefore I equal to minus cos 2x plus c. Constant of integration. So this question was very simple. Now see question number 7. I equal to integral of root 1 plus sin 5x into dx. तो देखो फर्स्ट यहाँ पर एक फार्मूला नोट करो, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा. क्या नोट करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर. और अगर मान लो इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो स्क्वायर रूट दोनों साइड मत लिखिए. क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू
cos theta plus sin theta whole square. This is formula. So therefore it is equal to integral square root of cos 5x upon 2 plus sin 5x upon 2 whole square. क्योंकि देखो इसको एक्सपैंड करोगे तो हमें फिर से ये टर्म मिल जाएगा. कैसे? नाउ सी, cos square 5x upon 2 plus sin square 5x upon 2 is 1 plus 2 sin cos 5x upon 2 into sin 5x upon 2 becomes sin 5x, sin 2 theta का फॉर्मूला. तो इसको एक्सपैंड करने के बाद हमें फिर से ये टर्म मिलता है. दिस इज द फॉर्मूला. नोट कर लिए? ओके. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x इंटू डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 5x अपॉन 2 प्लस sin 5x अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 5x अपॉन 2 प्लस sin 5x अपॉन 2 इंटू डी एक्स. क्योंकि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर get cancelled, or you can say taking square root here. So this is equal to integral cos 5x upon 2 plus sin 5x upon 2 into dx. Now integrate each term separately. So integral of cos 5x upon 2 is sin 5x upon 2 upon 5 upon 2 because of coefficient of x is 5 upon 2. फिर से देखो, इंटीग्रल ऑफ cos 5x upon 2 is sin 5x upon 2 upon 5 upon 2 minus इंटीग्रल साइन 5x अपॉन 2 कॉस 5x अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 2. क्योंकि नेगेटिव साइन होता है माइनस यहाँ पर, तो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस प्लस सी. नाउ रीअरेंजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट आई इक्वल टू 2 अपॉन 5, 5 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 5 साइन 5x अपॉन 2 माइनस दिस इज 2 अपॉन 5 इंटू कॉस 5x अपॉन 2 प्लस सी. तो डिनोमिनेटर को हमने रीअरेंज कर दिया, मीन्स उनके रेसिप्रोकल्स जो करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए वो लिखा गया. आई इक्वल टू 2 अपॉन 5 साइन 5x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5 कॉस 5x अपॉन 2 प्लस सी ओवर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. अब 8th क्वेश्चन में देखो क्या है. यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन cos स्क्वायर में भी हो सकता है और साइन स्क्वायर में भी हो सकता है. किसी भी टर्म में होगा. उसको सॉल्व करने का वे देखो क्या होना चाहिए. आई इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा वो फॉर्मूला यहाँ पर नोट करो. cos 2 थीटा, क्या लिखना है? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ listen once again, cos 2 theta equals 2 cos square theta minus 1. Therefore, cos square x from that formula, अब इसे cos square x, तो यहाँ cos 2x equal to 2 cos square x minus 1. So therefore, cos square x can be written as 1 plus cos 2x upon 2. उसी फार्मूले से, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को हमें cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, न कि स्क्वायर. जब भी साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर का टर्म आएगा तो उसको हम लोग cos 2 थीटा की तरफ ले जाएंगे और कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं है. स्क्वायर फॉर्म में है तो हमें cos 2 थीटा की तरफ कन्वर्ट कर लेना है, फिर इंटीग्रेट कर सकते हो. तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट? 1 plus cos 2x upon 2. Okay, so therefore I equal to integral 1 plus cos 2x upon 2 into dx. Now सेपरेट इट एंड इंटीग्रेट इट. तो 1 बाई 2 dx हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? देखो 1 अपॉन 2. तो 1 अपॉन 2 हम लोग सबसे पहले अपॉन 2 है हाफ बाहर ले लेते हैं आउट ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x. इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx इज sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फिर से देखो, ये अपॉन 2 है तो हमने हाफ को बाहर ले लिया, राइट. इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x plus integral of cos 2x dx is sin 2x upon 2 plus constant of integration. Now multiply by half. Half into x, x upon 2 plus half into sin 2x upon 2. So this will be sin 2x upon 2 into 2 or 1 upon 2 into sin 2x plus c. So taking 1 by 4 out from these two terms. If we take 1 by 4 common, so this will be 2x plus sin 2x plus c. क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ इंटू टू करोगे तो डिनोमिनेटर इसका भी 4 हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, तो इंटू टू यहाँ फर्स्ट टर्म में कर दिए तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 4, तो 1/4 आउट, इन द ब्रैकेट 2x plus sin 2x plus c, constant of integration. Both answers are correct. You can write in this form or in this form. Both are correct answer. क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th. I equal to integral 2 upon root of x minus root of x plus 3 into dx. So we see that here denominator is a rational part. तो यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3. तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 upon root x minus root x plus 3 and in another bracket root x plus root of x plus 3 into dx. In first bracket root of x minus root of x plus 3, in another bracket root of x plus root of x plus 3 into dx. So numerator will be same, no change in the numerator, but denominator is a minus b into a plus b form. So a minus b into a plus b is a square minus b square. So this is equal to integral 2 into root x plus root of x plus 3 upon square of root x is x. Square of root x plus 3 is x plus 3 only. So we write here minus x and minus into plus becomes minus 3. Correct? X minus 3 is the denominator. Now x minus x is 0. Only minus 3 is remaining. तो यहाँ पर 2 है constant और डिनोमिनेटर में क्या है minus 3. तो हम लोग इसको 2 upon minus 3 as a constant taken out. So this is equal to minus 2 upon 3 integral of root x plus 3 into dx. और अब देखो दोनों ही फार्मूले में हमारा रूट है, दोनों ही टर्म में रूट है, तो इनके दोनों के लिए फार्मूला क्या आएगा, x रेज टू हाफ यहाँ भी हो गया और यहाँ हो जाएगा x plus 3 होल रेज टू 1/2. तो यूजिंग x रेज टू n फार्मूला फॉर बोथ द टर्म्स, यूजिंग x raised to n formula for both the terms. So this is equal to minus 2 upon 3 as it is. Integral of root x is 2 by 3 into x raised to 3/2 plus integral of root x plus 3 dx is 2 by 3 into x plus 3 whole raised to 3 upon 2 bracket closed plus c, क्योंकि यहाँ पर minus 2 by 3 for both the terms. अब यहाँ देखो देर इज नो कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमें बाहर कुछ यहाँ डिवाइड नहीं करना है. करेक्ट? अगर मान लो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होता तो यहाँ पर अपान में आ जाता. क्लियर? तो यहाँ नहीं है तो नथिंग इज इन अपान, ओनली 2/3 जो इसका मेन फार्मूले से आता है वही रहेगा. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो 2/3 इज कॉमन इन बोथ द टर्म टेकन आउट, तो माइनस 2/3 इंटू 2/3 और आ जाएगा बाहर, तो इट इज इक्वल टू minus 4/3 into x raised to 3/2 as it is plus x plus 3 whole raised to 3/2 as it is plus constant of integration, और ये फॉर्मेट रहेगा इसका लिखने का. तो I equal to this much. So I equals minus 4/9 in bracket in x raised to 3/2 plus x plus 3 whole raised to 3/2 bracket closed plus constant of integration. तो ये हमारा टर्म यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 9 अब कंप्लीट हो गया, जो कि एक रेशनलाइजेशन वाला पार्ट था. तो ये रेशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे उन्हें हम सबको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइजेशन आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो स्कूल लेवल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रेशनलाइजेशन के लिए. सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक न्यू टर्म आया हुआ है, क्योंकि ये टाइप के रेशनलाइजेशन तो पहले भी सीख चुके हो. ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 3 अपॉन रूट ऑफ 7x minus 2 minus root of 7x minus 5 dx. Now this is rational part again. So what is the conjugate of the denominator? Root of 7x minus 2, यहाँ पर प्लस root of 7x minus 5 हो जाएगा.
तो दिस विल बी प्लस, कॉन्जुगेट के लिए सिर्फ प्लस लेना है। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5। नाउ सी दिस, so this will be integral of 3 into bracket root of 7x minus 2 plus root of 7x minus 5 bracket closed upon root of 7x minus 2 in the first bracket, root of 7x minus 2 minus root of 7x minus 5 bracket closed. In the second bracket, root of 7x minus 2 plus root of 7x minus 5 into dx. So we see that denominator is in the form of a minus b into a plus b. So it will be a square minus b square. So this is equal to integral 3 into root of 7x minus 2 plus root of 7x minus 5 upon square of root of 7x minus 2 is 7x minus 2 only, minus square of root of 7x minus 5 is 7x minus 5, but before this minus sign, so this will be minus 7x plus 5, minus minus plus. Here's minus 7x and plus 7x get cancelled and 5 minus 2 becomes 3. इसका denominator 3 हो गया and numerator will be same, no change in the numerator. So this is equal to integral 3 into square root of 7x minus 2 plus square root of 7x minus 5 into dx and whole divided by 3. तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ पर कैसे करोगे इसको। तो यहाँ पर भी हमें क्या कर लेना है, देखो 7x गेट कैंसल्ड, 5 minus 2 becomes 3 and here 3 going by 3, क्योंकि यहाँ 3 था ऑलरेडी पहले से है 3, तो 3 going by 3. तो रिमेनिंग टर्म विल बी इंटीग्रल root of 7x minus 2 plus root of 7x minus 5 into dx. And you know very well what is integral of root x. देखो दोनों टर्म में सेम फॉर्मूला लगने वाला है, दोनों ही टर्म में रूट एक्स की फार्मूला है। तो जब ये दोनों टर्म में रूट एक्स का फार्मूला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग रूट एक्स के फार्मूले को मेनी टाइम्स प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, और उसके पहले भी जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें भी रूट एक्स आ चुका है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही केयरफुली, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स इंटीग्रल ऑफ रूट 7x माइनस 2 dx क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2/3 इंटू 7x माइनस 2 अपॉन 7। क्यों अपॉन 7 हुआ, पहले क्वेश्चन में नथिंग वाज इन अपॉन, क्योंकि वहाँ कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है x का, 7, तो डिवाइड बाई 7। ओके, फिर से देख लो, 2/3 इंटू 7x माइनस 2 होल रेज टू 3/2 अपॉन 7 प्लस सेम फार्मूला फॉर द सेकंड टर्म। तो इंटीग्रल ऑफ रूट 7x माइनस 5 इंटू dx इज 2/3 इंटू 7x माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2 अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रिपीट कर देता हूँ, फिर से देख लो, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7x माइनस 2 होल रेज टू 3/2 अपॉन 7 प्लस 2/3 इंटू 7x माइनस 5 होल रेज टू 3/2 अपॉन 7 प्लस c। ये 7 कोफिशिएंट ऑफ x दोनों ही टर्म के लिए है। नाउ वी सी दैट 2/3 into 7 and 2/3 into 7 in both the term, and it is common. So here 3 into 7 21, here 3 into 7 21, so this will be 2/21. So this will be 2/21 common into 7x minus 2 whole raised to 3/2 plus 7x minus 5 whole raised to 3/2 plus constant of integration. So therefore I equal to 2/21 into, bracket use करोगे, rectangular bracket or any bracket, 2/21 into 7x minus 2 whole raised to 3/2 plus 7x minus 5 whole raised to 3/2 bracket closed plus constant of integration. तो ये रहा अपना रेशनल पार्ट का इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने समझा कर बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।